Good evening everyone. In the previous lecture we have completed our topic, that is antihypertensive drug, and in this lecture we are going to start with anti-anginal drugs and drugs used in myocardial infection. Okay. Anti-anginal drugs and drugs used in myocardial infection. Okay, so moving on. Firstly, we will talk about angina. So angina is a symptom of ischemic heart disease. Angina is a symptom of ischemic heart disease. Okay, so now moving on further, ये किस वजह से होता है? So there is imbalance. Okay, there is imbalance between oxygen supply and oxygen demand. Okay, so in angina there is imbalance between oxygen supply and oxygen demand. Now we will talk about the various types of angina that we have. Okay, various types of angina. So in types of angina, we have basically three types of angina. The first one is classical और stable angina. ठीक है, first one is classical or stable angina. The next one is unstable angina. The last one is Prinzmetal or variant angina. Okay, Prinzmetal or variant angina. Now talking about the first one, that is classical or stable angina. Okay, classical or stable angina. So this type of angina occurs due to atherosclerosis. Okay, atherosclerosis of coronary artery. Okay, atherosclerosis of coronary artery. Okay, so first we are talking about the first one. So in this first one we have classical or stable angina. So it basically occurs due to atherosclerosis of coronary artery branch. ठीक है, branch of coronary artery, और coronary artery की जो branch होती है उसमें क्या होता है, basically atherosclerosis का plaque formation होता है, जिसकी वजह से there will be ischemia. So normally after ischemia, when there, अब इसके बाद क्या करेंगे, बेसिकली दो, मतलब इसमें पेन कब आता है और कब पेन फील होता है, रेस्ट पे होता है कि मतलब जब पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटी पे है तब पेन फील होता है. ठीक है, सो हम लोग ये बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे दो कंडीशन से. सो व्हेन पेशेंट एट नॉर्मल एक्टिविटी. ओके, सो व्हेन पेशेंट एट नॉर्मल एक्टिविटी. सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, अब यहां पे क्या हो गया, इश्चीमिया हो गया है. ओके, सो देयर इज इफेक्टिव इंक्रीज्ड effective
diameter, sorry, increased effective diameter of artery. ओके, सो यहां पे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है जब इश्चीमिया होता है, ठीक है, क्या हुआ कि जो ब्लड वेसल्स थी उसमें अथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, ठीक है. सो अथेरोस्क्लेरोसिस जब होता है, सो देयर इज रिड्यूस्ड डायमीटर और रिड्यूस्ड ल्यूमेन साइज. सो देयर इज इंक्रीज्ड, जब इश्चीमिया हुआ तो कंपनसेटरी देयर इज इंक्रीज्ड अफेक्टिव डायमीटर ऑफ द आर्टरी. बट नाउ टॉकिंग, और ये जो इफेक्टिव इंक्रीज होता है ये इतना सफिशिएंट रहता है दैट इट विल कंपनसेट द इश्चेमिक लॉस. ओके, दैट इट विल कंपनसेट द इश्चेमिक लॉस इन नॉर्मल एक्टिविटी. ओके, कि जब पेशेंट हमारा मतलब या जो भी है, मतलब पर्सन है पर्टिकुलरली, वो नॉर्मल है, रेस्ट पे है, तो जो इश्चेमिक लॉस को कंपनसेट करने के केपेबल होता है जो इंक्रीज होता है पर्टिकुलरली डायमीटर में, ठीक है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट another condition number 2. Okay, so when patient is exerting, जब एक्सर्शन या स्ट्रेस जैसी कोई कंडीशन आ रही है, फॉर एन एग्जाम्पल एक्सरसाइज जब कर रहा है वो पर्टिकुलरली, सो द इंक्रीज इन इफेक्टिव डायमीटर cannot compensate, okay, cannot compensate the ischemic loss, ओके. सो जो इंक्रीज्ड इफेक्टिव डायमीटर हुआ किसका, आर्टरी का, ठीक है, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू कंपनसेट द इश्चेमिक लॉस. जो इश्चीमिया की वजह से जो पर्टिकुलरली ल्यूमेन में क्या हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, उसकी वजह से जो डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई हुई, उसके लॉस को कंपनसेट करने में केपेबल नहीं रहता ड्यूरिंग एक्सर्शन और एक्सरसाइज. सो इन दिस कंडीशन क्या हो रहा है, मतलब जो क्लासिकल और स्टेबल एंजाइना का जो हमारा टाइप है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, पेशेंट कंडीशन क्या आ रही है, सॉरी, पेन एट एक्सर्शन, ठीक है, पेन एट एक्सर्शन. Now talking about the next class. Okay. Now talking about the next class, that is Prinzmetal. Prinzmetal angina, Prinzmetal or variant angina. Okay, Prinzmetal or variant angina. So in this type of angina, what happens, this type of angina occurs due to spasm of coronary artery, spasm of coronary arteries. और वो जो इंक्रीज्ड इफेक्टिव डायमीटर था क्लासिक और स्टेबल के में बेसिकली, सो सपोज दिस इज आवर coronary artery and this is its branch. Okay, and suppose atherosclerosis is present here, ठीक है, atherosclerosis is present here occluding the artery or decreasing the oxygen supply. So I told earlier that there is increased effective diameter of the artery. So इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, और भी कोलैटरल ब्रांचेस प्रेजेंट रहती हैं. सो एक्सरसाइज और एक्सर्शन के टाइम पे क्या होता है, वो कोलैटरल्स ओपन अप हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपनसेशन हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली कंपनसेशन हो जाता है. बट एक्सरसाइज और एक्सर्शन के टाइम पे जो ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल इंडिविजुअल में सेटिस्फाई हो जा रही थी, वो इश्चेमिक लॉस के टाइम पे नहीं सेटिस्फाई हो पाएगी, ठीक है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, देयर इज स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी. इसका रीजन होता है प्रिंजमेटल और वेरिएंट एंजाइना का, ठीक है. अब इसमें जो पेन होता है, ठीक है, इसमें जो पेन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, किस वजह से नहीं, मतलब किस कंडीशन में होता है, इसमें जब पेशेंट रेस्ट में भी होता है तब भी इसमें क्या होता है, पेन जैसी सिचुएशन रहती है. और इसमें हम लोग एम क्या करते हैं,
ठीक है, जो हमारा क्लासिकल और स्टेबल एंजाइना था उसमें हम लोग एम करते हैं बेसिकली टू डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ हार्ट, ठीक है, टू डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ हार्ट। तो हम लोग ऐसी मेडिकेशन चलाएंगे जो हार्ट के वर्कलोड को डिक्रीज करे। वी विल टॉक इट अबाउट लेटर, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस। सो इन दिस वी विल एम टू dilate, we will aim to dilate the coronary artery, we will aim to dilate the coronary artery, okay। so इसमें क्या हो रहा है, there is spasm of coronary artery, spasm और contraction, okay। और ये जो पेन हो रहा है ये किस पे हो रहा है, रेस्ट पे हो रहा है। एम क्या है इसमें कि डायलेशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, ये हमारा क्या है बेसिक एम रहेगा। तो हम लोग ऐसी मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे प्रिंस मेटल और वेरिएंट एंजाइना में दैट विल लीड्स टू डायलेशन ऑफ द कोरोनरी स्पाज्म या डायलेशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी बेसिकली, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन दैट इज अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। So in this case unstable angina, there it occurs due to rupture of plaque और थ्रोम्बस। सो इसमें क्या होगा, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन और ऑब्लिटरेशन हो जाएगा एट द ब्रांचेस, ठीक है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन और ऑक्लूजन एट द ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो पेन होगा, ठीक है, पेन जो होगा, पेन किस पे होगा, रेस्ट के कंडीशन में भी पेन होगा इसमें। अब इसमें बेसिक अगर कहा जाए तो ठीक है, पेन एट रेस्ट तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ क्या है, देयर इज इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, ठीक है, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एंजाइना, ओके। सो वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक, वी हैव मतलब डिस्कस्ड अबाउट द एंजाइना और वी हैव सीन व्हाट इज द इम्बैलेंस, दैट इज ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड इज द इम्बैलेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंजाइना वी हैव डिस्कस्ड द 3 टाइप्स, क्लासिकल और स्टेबल, अनस्टेबल एंजाइना, प्रिंस मेटल और वेरिएंट एंजाइना। एंड नाउ वी आर फर्दर मूविंग ऑन टू डिस्कस द factors that leads to oxygen supply reduction, okay। So factors which leads to decreased oxygen supply, so these are coronary थ्रोम्बस, ठीक है। जब थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है, हमने देखा तो ये क्या करेगा, बेसिकली ऑक्लूजन कर देगा, ठीक है, ऑक्लूजन कर देगा। देन नेक्स्टली कोरोनरी वेजोस्पाज्म, ओके, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एक तरीके से। एंड लास्टली कोरोनरी atherosclerosis, coronary atherosclerosis. So this can be remembered by the mnemonic VAT, VAT. Vasospasm, atherosclerosis and vasospasm, atherosclerosis and thrombus. Now talking about the increased oxygen demand, how द ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीज्ड, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, वेंट्रिक्यूलर इंक्रीज्ड वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, ओके। देन नेक्स्टली देयर इज वेंट्रिक्यूलर हाइपरट्रॉफी, ventricular hypertrophy,
then nextly there is increased heart rate, nextly there is increased wall tension. So these are the conditions which leads to increased oxygen demand. ठीक है, and this is the condition that leads to decreased oxygen supply. Okay, increased oxygen demand. So this leads to imbalance and anginal attacks or pain due to angina. Okay, so now talking about how can we increase the oxygen supply. अब anti anginal जो भी drugs होगी, we will focus basically on the in order to increase the oxygen supply. अब oxygen supply कैसे increase कर सकते हैं? So by कैसे? By restoration of firstly by restoration of coronary blood flow. Okay, so by restoration of coronary blood flow, and this can be done by PCI and CABG. ठीक है, so this is percutaneous intervention. This is percutaneous intervention. ठीक है, और ये क्या है? इसमें कोरोनरी आर्टरी बाईपास coronary artery bypass grafting. Okay, so by restoration of coronary blood flow is the first method in order to increase the oxygen supply. Now talking about the next, so the next factor, we know that there is formation of or breakdown of thrombus or plaque. ठीक है, सो थ्रोम्बस का तो दो चीज करना है. ठीक है, एक तो क्या करना है हमको, बेसिकली थ्रोम्बस का फॉर्मेशन को स्टॉप करना है. ठीक है, थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को स्टॉप करना है, और दूसरा क्या है? ब्रेक करना है. ठीक है, तो ब्रेक कैसे कर सकते हैं? तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स यूज करके. फॉर एन एग्जाम्पल कौन सा हो गया हमारा? फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया. स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया एक, और नेक्स्ट क्या हो गया? यूरोकाइनेज. ओके, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज. नेक्स्ट, फॉर्मेशन रोकने के लिए. ठीक है, टू प्रिवेंट फॉर्मेशन. सो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स लाइक एंटी प्लेटलेट drugs like statin. Antiplatelet drugs like statin. ठीक है, and now talking of antiplatelet drug like क्या हो गई हमारी? statin हो गई. and next, in order to relieve vasospasm. ये थर्ड मेथड है हमारा. by relieving vasospasm. So this can be done by calcium channel blocker and nitrates. ठीक है, सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रेट्स. अब ये इसमें एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, बेसिकली तो क्या होता है इसमें, आई विल टेल यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग.
बट फर्स्टली लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ थ्रोम्बस. सो थ्रोम्बस में बेसिकली क्या होता है कि ये प्लेटलेट रहता है, ठीक है. फिर यहाँ पे फाइब्रिनोजन आ जाता है, ठीक है. और इसी में क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स एंट्रैप्ड हो जाती हैं. सो इट इज द होल मैश वर्क लाइक स्ट्रक्चर. ओके, होल मैश वर्क लाइक स्ट्रक्चर. क्या क्या है इसमें, प्लेटलेट आई, फाइब्रिन आया, और क्या आ गई, आरबीसीज आके क्या हो गई, एंट्रैप्ड हो गई, ठीक है. सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस. बट इसमें क्या होता है कि अगर अपन एंटी प्लेटलेट ड्रग यूज करेंगे तो अब आपको मतलब तो समझ में आ ही गया इसका, ठीक है. सो मूविंग ऑन फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द methods to decrease the oxygen demand. ओके, सो इसमें क्या होगा, बेसिकली डिक्रीजिंग प्रीलोड, ठीक है. अब प्रीलोड जैसी जो कंडीशन है वो मेनली किसकी वजह से डिक्रीज होगी, सो इट इज डिक्रीज्ड बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है. नेक्स्टली डिक्रीजिंग द आफ्टर लोड, डिक्रीजिंग द आफ्टर लोड, ठीक है. सो आफ्टर लोड बेसिकली किनकी वजह से होगा, पोटेशियम चैनल ओपनर, ठीक है. आफ्टर लोड किसकी वजह से होगा, बेसिकली पोटेशियम चैनल ओपनर, ठीक है. सो आफ्टर लोड और प्री लोड को अगर क्या करेंगे, बेसिकली डिक्रीज कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है. अब बात करेंगे नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द हार्ट रेट, और क्या कहा जाए, डिक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो बीटा जो एड्रेनर्जिक क्या होंगे, बेसिकली बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, वो क्या होगा, उनका कार्डियक डिप्रेसिंग इफेक्ट होगा. सो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स. ओके, सो दिस 3 methods are used, or we will basically use these drugs in order to achieve our main aim, that is to decrease the oxygen demand in order to treat the patient, ठीक है. So now moving on further, we will discuss each and every drug respectively, ठीक है. And we are going to start with, okay, so firstly we will discuss the classification. First of all we will discuss the classification. So in classification we have the first class of group, that is we have nitrates. And in nitrates we have short acting group that comprises of glycerine trinitrate or nitroglycerine, okay. And the next thing is long acting. In long acting we have isosorbide, mononitrate, isosorbide mononitrate, okay. We have isosorbide dinitrate, we have erythritol, we have erythritol, pentanitrate, and we also have pentaerythritol
pentaerythritol, tetranitrate. Okay, so in nitrates we have isosorbide mononitrate, isosorbide dinitrate, erythritol pentanitrate. Sorry, this is erythritol tetranitrate. Okay, this is erythritol tetranitrate. So it will be ETN and it will be PTN or PETN. Okay, so this is our nitrate. We have potassium channel opener. Okay, so potassium channel openers, we have Nico Randall. Okay, Nico Randall. Okay, nextly we have calcium channel blockers. So in this we have phenyl alkyl amine के अंदर कौन सा आएगा? वेरापामिल. Okay, this is phenyl alkylamine. We have verapamil. Nextly we have benzthiazepine. So in this we have diltiazem. Nextly we have dihydropyridine. So in this we have dipines in the end. In this we have dipines in the end, that is phenol. Sorry, that is we have dipines in the end. Lacidipine, LACI, lercanidipine, phenadipine. Okay, so these dipines we have in calcium channel blocker. And nextly we have beta blockers. Okay, nextly we have beta blockers, and in beta blockers we have MAP, that is metoprolol, tenolol or propranolol. Okay, and now moving on further, we will have another class that is others. All the rest of the drugs, those were not classified, are put into the category others. Okay, and in others we have Toder, that is oxyphedrine. Okay, nextly we have ivabradine, Ranola, we have ranolazine, we have dipyrimidine, and we have trimetazidine. Okay, so in Toder we have basically
ये निमोनिक है, ठीक है। मेटाजिडीन, सो ट्राई मेटाजिडीन। ऑक्सीफेड्रिन, ओके। फिर पायरीमाडोल, ओके, वी हैव पायरीमाडोल, ओके, सो डाईपायरीमाडोल, ठीक है। इसके बाद इवाब्रेडिन एंड फाइनली रेनोलाजिन, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन फर्दर, वी विल डिस्कस द फर्स्ट ड्रग, दैट इज नाइट्रेट्स। Okay, so in nitrates we have slow acting, and we have fast acting. In slow acting we have glycerine trinitrate or nitroglycerine, and in fast acting we have isosorbide mononitrate, we have isosorbide dinitrate, we have isosorbide dinitrate, we have erythritol tetranitrate, and we have pentaerythritol tetranitrate. Okay, so these are the classes of drug that we have in nitrates. Now talking about the basic what we have. Okay, so now talking about this in GTN और आइसोसॉर्बाइड and isosorbide mononitrate, okay, sorry, isosorbide dinitrate, so these drugs have high first pass metabolism, ठीक है। so these are given sublingually and used in acute attack of angina, यहाँ पे एक और ड्रग आ जाएगी जिसको कहते हैं हम लोग अमाइल नाइट्राइट और अमाइल नाइट्राइट और AN, okay, so these drugs are used in acute attack of angina, first thing. Nextly we will discuss about the mechanism of action, okay, और ये जो हमारी पेंटा एरिथ्रेटिल टेट्रानाइट्रेट जो है वो है हमारी बेसिकली कैसी, लॉन्गेस्ट एक्टिंग, ठीक है। ये कैसी है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग, okay. So now discussing about the next, so this is introductory part of nitrates, that is we have discussed the drugs, we have discussed the action, matlab duration of action and the route of administration basically, or we will look it further in the pharmacokinetic topic of this nitrate group. Now we are moving towards the mechanism of action. So in mechanism of action, basically what happens that these nitrates are converted into nitrites are converted into nitric acid that have vasodilation effect, okay. So मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या हो रहा है बेसिकली कि जो नाइट्रेट्स हैं वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, नाइट्रिक एसिड में, ठीक है ना, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड में, जो कि क्या करा रहा है, वेजो डायलेशन करा रहा है। अब ये भी जो वेजो डायलेशन होता है इसमें मोर क्या होता है, वेनो डायलेशन, मोर क्या होता है, वेनो डायलेशन। ऐसा क्यों, मोर होता है वेनो डायलेशन देन एट्रियोलर डायलेशन, वेनो डायलेशन एट्रियोलर डायलेशन से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, बिकॉज यहां पे क्या प्रेजेंट रहता है, इसके कन्वर्जन में एक एंजाइम हेल्प करता है जिसको कि कहते हैं ALD, दैट इज एल्डिहाइड
that is aldehyde dehydrogenase. So an enzyme is used that is aldehyde dehydrogenase. ठीक है, सो एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेस जो होता है वो मोर प्रेजेंट रहता है किसमें, वेन्स में देन आर्टरीज के कंपैरिजन में. सो वेजोडाइलेशन मोर होता है नाइट्रेट्स के द्वारा. नेक्स्ट जो थिंग है बेसिकली कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेस प्रेजेंट रहते हैं वो अदर ग्रुप ऑफ ड्रग्स से स्टिमुलेट होते हैं. सॉरी, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वाले एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेस होते हैं वो बेसिकली नाइट्रेट्स ओनली नाइट्रेट्स, सिर्फ जो नाइट्रेट्स रहते हैं वही इनको एक्टिवेट कर पाते हैं काफी हद तक. एंड नेक्स्टली क्या है, बाकी जो साइटोप्लाज्म में एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेस प्रेजेंट रहते हैं वो अदर ग्रुप ऑफ ड्रग्स से स्टिमुलेट होते हैं. दीज आर स्टिमुलेटेड बाय अदर ग्रुप ऑफ ड्रग्स. सो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, मोर क्या हो रहा है, वेनो डायलेशन हो रहा है. अब ये जो वेनो डायलेशन है इसकी वजह से क्या होता है बेसिकली, देयर इज डिक्रीज्ड प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, डिक्रीज्ड आफ्टर लोड, डिक्रीज प्रीलोड एंड डिक्रीज्ड आफ्टर लोड. ठीक है, डिक्रीज प्रीलोड एंड डिक्रीज्ड आफ्टर लोड. अब नाइट्रेट्स का जो फंक्शन होता है, ठीक है, नाइट्रेट्स का जो फंक्शन होता है क्लासिकल एंजाइना में, ठीक है, क्लासिकल एंजाइना की कंडीशन में नाइट्रेट्स का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, इट टू डिक्रीज प्रीलोड. ठीक है, लेकिन जो वेरिएंट एंजाइना में नाइट्रेट्स हम लोग बेसिकली एडमिनिस्टर करते हैं, वेरिएंट एंजाइना में जो नाइट्रेट्स हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, दैट इज यूज्ड इन डायलेशन ऑफ coronary arteries. It is used in dilation of coronary arteries. It is used in dilation of coronary arteries. Now we will discuss the mechanism of action in brief. We have few knowledge about it. Okay. So as we know that its aldehyde dehydrogenase is present in the mitochondria. So how it is basically functioning on the inside, or how it is functioning inside. So what happens, nitrates metabolized to aldehyde dehydrogenase की प्रेजेंस में किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक oxide. That will activate leads to activation of guanylate cyclase enzyme. ठीक है, that will leads to activation of guanylate cyclase enzyme. क्या हुआ, सबसे पहले नाइट्रेट्स एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, जिसने क्या किया, फर्दर क्या किया, एक्टिवेशन किया guanylate cyclase का. ठीक है, अब इसके बाद it will leads to और helps in formation of CGMP increased, which will leads to stimulation of protein kinase, which will leads to inactivation of myosin light chain kinase, and it will leads to vasodilation.
So this is the whole process of vasodilation. What is happening here? That nitrates are converted into nitric oxide with the help of aldehyde dehydrogenase, and it is activating what? Guanylate cyclase enzyme. ठीक है, which will helps in formation of CGMP. That is CGMP. ठीक है, and it is leading to activation of protein kinase or stimulation of protein kinase which is inactive, which will inactivate. ठीक है, ये क्या है? inactivation. ठीक है, inactivation को मैंने okay, so it will leads to inactivation of myosin light chain kinase, and finally it will leading to vasodilatory effect. So this is the whole mechanism of nitrate. Okay, now talking about the pharmacological, talking about the pharmacological action of nitrates. Now talking about the pharmacological actions of nitrates. So in this we have basically what? Venodilation, that is more prominent. Okay, why? Because of more aldehyde dehydrogenase enzyme in the veins. So firstly it is causing the venodilation, which will further leads to, we have previously discussed it, peripheral pooling of blood, peripheral pooling of blood in veins, which will lead to decreased venous return टू हार्ट. ठीक है, सो पहला इफेक्ट क्या है? वेनोडाइलेशन. तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा? वेन्स पे आ रहा है. नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ आ रहा है? हार्ट पे आ रहा है. ठीक है, क्या आ रहा है? हार्ट पे. वेनस रिटर्न हार्ट पे कम हो गया. वेन्स में क्या हुआ? पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड इन वेन्स. ठीक है, नेक्स्टली क्या हुआ? बेसिकली देयर विल बी, ठीक है, सो कहाँ हुआ? वेन्स में क्या हुआ? पेरिफेरल पूलिंग हुई, और हार्ट में क्या हुआ? वेनस रिटर्न कम हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया? देयर विल बी डिक्रीज्ड प्रीलोड, देयर विल बी डिक्रीज्ड प्रीलोड. ठीक है, अब डिक्रीज्ड प्रीलोड की वजह से क्या हुआ? देयर विल बी डिक्रीज्ड एंड डायस्टोलिक ventricular volume. There will be decreased and diastolic ventricular volume. ठीक है, अब क्या हुआ इसकी वजह से? There will be and decreased and diastolic ventricular volume. ठीक है, अब इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं EDVV. ठीक है, so it will leads to डिक्रीज्ड EDVV. ठीक है, डिक्रीज्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. क्या हुआ? पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड इन द वेन्स. फिर क्या हुआ? डिक्रीज्ड वेनस रिटर्न, डिक्रीज्ड प्रीलोड, डिक्रीज्ड EDVV एंड डिक्रीज्ड वर्क लोड. फाइनली डिक्रीज्ड वर्कलोड विच विल लीड्स टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड. तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई. नेक्स्ट क्या हुआ? एट्रियोलर डायलेशन, आर्टेरियोलर डायलेशन, ये हो रहा है एक. ठीक है, आर्टेरियोलर डायलेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज्ड पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, देयर विल बी डिक्रीज्ड आफ्टर लोड एंड फाइनली देयर विल बी डिक्रीज्ड वर्कलोड ऑन हार्ट. ठीक है, डिक्रीज्ड वर्कलोड ऑन हार्ट. ठीक है, अब क्या हुआ? ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या हो गई? कम हो गई. वर्कलोड कम हो गया, एट्रियोलर डायलेशन की वजह से हो गया. एंड फाइनली देयर इज डायलेशन. यहाँ पे विजिबल नहीं आ पाएगा तो मैं इधर ड्रॉ कर दे रहा हूं. देयर इज डायलेशन ऑफ कोरोनरी arteries, larger
coronary arteries and collaterals, ठीक है। ये एक चीज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कोरोनरी आर्टरी वाले में और कोलैटरल वाले में, कि इसमें हम लोग मेन मैकेनिज्म क्या होता है, वी विल ट्राई टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू ischemic areas by redistributing larger coronary branches और collaterals। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज कराते हैं किसमें, इस्चेमिक एरियाज में। सो देयर विल बी डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू नॉन इस्चेमिक एरियाज, नॉन इस्चेमिक एरियाज फॉर कंपनसेशन। इट इज फॉर कंपनसेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनसेशन में क्या हुआ, ये सब हुआ। सो देयर इज इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ओके, इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ ब्लड ड्यू टू डायलेशन, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, इसकी वजह से और इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड की वजह से फाइनली क्या हुआ, देयर इज रिलीफ ऑफ पेन फ्रॉम एंजाइना, रिलीफ ऑफ पेन ऑफ एंजाइना। ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले क्या हुआ, वेनोडाइलेशन, ठीक है। वेनोडाइलेशन के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे कि पेरिफेरल पूलिंग हो रही है ब्लड के अंदर, की थोड़ा सा ब्लड रह जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेनस रिटर्न कम हो रहा है, प्रीलोड कम हो रहा है, ईडीवीवी दैट इज एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कम हो रहा है, विच विल लीडिंग टू डिक्रीज्ड वर्कलोड ऑन द हार्ट। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोगों को क्या क्या करना है, तो वर्कलोड हार्ट पे डिक्रीज करना है, दूसरा क्या कराना है, डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांचेस या लार्जर या कोलैटरल ब्रांचेस हो गई, ठीक है। तो वो तो ये आ गया, लेकिन हमको बेसिकली क्या कराना है, डायलेशन कराना है, ठीक है। सो वर्कलोड हो गया हमारे यहाँ पे कम, इसकी वजह से क्या हो गया, डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। अब क्या हो रहा है, एट्रियोलर डायलेशन, तो पेरिफेरल डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज आफ्टरलोड, सो वर्कलोड फाइनली डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हमने बेसिकली हमको क्या अचीव करना है कि जो इस्चेमिक एरिया है, इस्चेमिक एरिया में क्या होता है बेसिकली, देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एट दैट पर्टिकुलर एरियाज व्हिच विल लीड टू नेक्रोसिस और चेंजिंग अडैप्टेबिलिटी ऑफ द सेल्स, ठीक है, इन कंडीशन ऑफ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड और सॉरी इन कंडीशन ऑफ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई। वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो जो सेल्स होंगी वहां पे वो अपने फंक्शंस को उस हिसाब से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जिसमें से जो सबसे पहला चेंज आता है किसी भी सेल के अंदर, कोई भी मतलब चेंज आएगा अगर सबसे पहले, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है, दैट इज देयर विल बी डिप्लीशन ऑफ एटीपी एंड देयर इज चेंज इन परमिएबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ बेसिकली द पैथोलॉजी, बट वी विल व्हाट वी हैव टू डू दैट इज वी हैव टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द इस्चेमिक एरियाज। और ये कैसे होगा, ये कैसे अचीव कर पाएंगे कि जो नॉन इस्चेमिक एरियाज है वहां से क्या करें, बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। सो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पे क्या होगा, कंपनसेटरी डिक्रीज होगा, कंपनसेटरी डिक्रीज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड फाइनली देयर इज रिलीफ ऑफ पेन फ्रॉम द एंजाइना। तो जो एंजाइना का पेन है उससे हमको क्या होगा, बेसिकली रिलीफ मिलेगा। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द नाइट्रेट्स। Okay, so now talking about the pharmacokinetics. So in pharmacokinetics what happens, basically the nitrates are lipid soluble, so they are rapidly absorbed. Absorbed from buccal mucosa,
GIT, ठीक है, क्या क्या हो गया, बक्कल म्यूकोजा हो गया, GIT हो गया, और क्या हो गया हमारा स्किन। इन तीनों जगह से इसका क्या होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, बट इट विल अंडरगो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो बायो अवेलेबिलिटी इज लो, बायो अवेलेबिलिटी इज लो, सो ओरली, ओरल बायो अवेलेबिलिटी, ओरल बायो अवेलेबिलिटी लो, ठीक है। अब मेन बात यह है, एक्सेप्शन आ रहा है इसमें, एक 3 स्टार पॉइंट है, एक्सेप्शन आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट और ग्लिसरीन मतलब नाइट्रोग्लिसरीन और ये सब जो हो गया, इनका बेसिकली क्या होता है, हाई एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी लो होती है। ये पहले कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बायो अवेलेबिलिटी, सो orally it is less absorbed, oral absorption is, or oral bioavailability is less. Now talking about how, so how we can administer, and we have seen the route, another route, or we have seen it previously in the general pharmacology topic also. So it is given by sublingual route, ठीक है, slow, so rapid onset और less duration of action, less duration of action, approximately 2 to 5 minutes, ठीक है, 2 to 5 minutes. Now talking about स्किन की बात करें तो क्या होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये क्या हो गया लास्ट हमारा, ट्रांसडर्मल पैच के जब फॉर्म में हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं नाइट्रेट्स को, ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में जब एडमिनिस्टर करते हैं नाइट्रेट्स को, तो उसमें क्या आता है बेसिकली, जब ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में, तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म यूज हो जाता है इसका, ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज। हम लोग ट्रांसडर्मल, ये क्या है, स्पेशल मेथड ऑफ डिलीवरी ऑफ ड्रग है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म यूज होगा इसका, लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा बेसिकली। और एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन जो होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन जो होता है वो यूरिन से होता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकुरोनाइड डेराइवेटिव। ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन और ये सब, ठीक है। सो ये ग्लूकुरोनाइड डेराइवेटिव्स के फॉर्म में क्या होते हैं, बेसिकली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं इन यूरिन। Okay, so we will look in towards nitrates in our next lecture, and we will going to start with the adverse effect of nitrates, and we will continue this anti-anginal drug topic. Thank you.